أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ترجمہ کنزُل ایمان اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ ترجمہ کنزُل عرفان مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے اور مجھے اس جان کی قسم ہے جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ لا اقسم بیوم القیامہ مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسا تم گمان کرتے ہو در حقیقت ویسا نہیں ہے۔ مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے اور مجھے اس جان کی قسم ہے جو متقی اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے ہونے کے باوجود اپنے اوپر اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ملامت کرے کہ تم مرنے کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ترجمہ کنزُل ایمان کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے۔ ترجمہ کنزُل عرفان کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے۔ شان نزول یہ آیت عدی بن ربیعہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب واقع ہوگی، اس کے احوال کیسے ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا تو اس نے کہا اگر میں قیامت کا دن دیکھ بھی لوں تو بھی نہ مانوں اور آپ پر ایمان نہ لاؤں، کیا اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی ہڈیاں جمع کر دے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کے معنی یہ ہے کہ کیا اس کافر کا یہ گمان ہے کہ ہڈیاں بکھرنے گلنے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں ملنے اور ہواؤں کے ساتھ اڑ کر دور دراز مقامات میں منتشر ہو جانے سے ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کو جمع کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے۔ یہ فاسد خیال ہے۔ اس کے دل میں کیوں آیا اور اس میں یہ کیوں نہیں جانا کہ جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یاد رہے کہ یہاں آیت میں آدمی سے مراد خاص عدی بن ربیعہ ہے یا ہر وہ کافر مراد ہے جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا ترجمہ کنزُل ایمان کیوں نہیں ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں۔ ترجمہ کنزُل عرفان کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ بلا کیوں نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ کیا کافر یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں، ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کر سکتے ہیں اور ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس آدمی کی انگلیاں جیسی تھی کسی فرق کے بغیر ویسی ہی کر دیں اور ان کی ہڈیاں ان کے مقام پر پہنچا دیں۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اس طرح ترتیب دے سکتے ہیں تو بڑی ہڈیوں کا کیا کہنا، انہیں تو بدرجہ اولا ترتیب دے سکتے ہیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ ترجمہ کنزُل ایمان بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا۔ ترجمہ کنزُل عرفان بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کو جھٹلائے پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا۔
बल युरीदुल इंसान, बल्कि आदमी चाहता है। मुफस्सिरीन ने इस आयत के मुख्तलिफ माना बयान किए हैं, इसमें से 3 मुआली दर्जे झेल हैं। एक, इसका माना यह है कि इंसान का मरने के बाद उठाए जाने का इनकार करना किसी शुबहे और दलील न होने की वजह से नहीं है, बल्कि हाल यह है कि वो सवाल करने के बावजूद भी अपनी बदी पर कायम रहना चाहता है। और इसकी दलील यह है कि वो मजाक उड़ाने के तौर पर पूछता है क़यामत का दिन कब होगा। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, आयत के माना यह है कि आदमी मरने के बाद उठाए जाने और क़यामत के दिन हिसाब होने को झुठलाता है, हालांकि ये उसके सामने है। 3, हजरत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इस आयत के माना यह है कि आदमी गुनाह को मुकद्दम करता है और तौबा को मुअख्खर करता है और यही कहता रहता है कि अब तौबा करूंगा, अब अमल करूंगा, यहाँ तक कि उसे मौत आ जाती है और वो अपनी बदियों में ही मुब्तला होता है। फी ज़माना मुसलमानों की एक तादाद ऐसी है जिसमें ये मरज पाया जाता है कि उन्हें गुनाहों से रुक जाने और उनसे तौबा करने की तरगीब दी जाए और शरीयत के अहकामात पर अमल करने को कहा जाए तो आगे से ये जवाब देते हैं कि भैया अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, जब बुढ़ापा आएगा तो गुनाहों से तौबा भी कर लेंगे, नमाजें भी शुरू कर देंगे, रोजे भी रखने लगेंगे, दाढ़ी भी रख लेंगे और अल्लाह ताला अल्लाह अल्लाह करने में मसरूफ हो जाएंगे। लेकिन अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमारे ऐश करने के दिन हैं और अभी तो हमने दुनिया देखी ही क्या है जो इन चीजों में मसरूफ हो जाएं। और बाज़ मुसलमान तो ऐसे भी नजर आते हैं कि अगर उनकी औलाद में से कोई जवानी में गुनाहों से दूर भागने लगे, नेकियों की तरफ राग़िब होने लगे, चेहरे पर दाढ़ी शरीफ सजा ले, नमाज रोजे की पाबंदी शुरू कर दे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने लगे तो उसे उम्र लंबी होने का कहकर उन चीजों से रोकने की कोशिश करते हैं और तरह तरह से उसे समझाते हैं, मरने या मार देने की धमकियां देते हैं और उसे गुनाहों भरी जिंदगी में लौटाने के पूरे जतन करते हैं। और अगर वो उनकी बातों में ना आए तो उसे घर से निकाल देते और उसका सोशल बाइकाट कर देते हैं। गोया के उनके नजदीक इस्लाम के जो अहकाम पर अमल करना ऐसा संगीन जुर्म है जो उस वक्त तक माफी के काबिल नहीं जब तक कि वो उन अहकाम पर अमल करना छोड़ नहीं देता। मुसलमानों के गुनाहों में मशगूलियत, तौबा और अपनी इस्लाह से दूरी और इस्लाम के अहकामात पर अमल न करने का दुनियावी नतीजा आज सबके सामने है कि मुसलमान दुनिया भर में कमजोर और मगलूब नजर आ रहे हैं और कुफार मुस्लिम ममालिक पर हमले करके उनकी ईंट से ईंट बजा रहे हैं, जबकि आखिरत में उस चीज का अंजाम क्या होगा वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। तौबा में ताखीर करने के हवाले से इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ईमानदार तौबा करने की ख्वाहिश तो रखता है लेकिन महज सुस्ती और काहिली के बायस उसे तौबा करने में ताखीर हो रही होती है और वो दिल ही दिल में कहता जाता है कि मैं कल तौबा कर लूंगा, अभी ये ख्वाहिश तो पूरी कर लूं, बाद में इसका नाम तक न लूंगा। तो ऐसे शख्स से पूछिए कि तू तौबा के मामले में टाल मटोल करने में क्यों मुब्तला है, तो किस खुशफहमी का शिकार है, तू तौबा करने के लिए आज के बजाय कल का क्यों मुंतज़िर है, क्या मालूम है कि तुझे कल का दिन नसीब ही ना हो। अगर तुम ये गुमान रखते हो आज की बजाय कल तौबा आसान होगी तो इस खाम ख्याली को अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि ये मुहाल है और ये गलत बात जितनी जल्दी तेरे दिल से निकल जाए इतना ही तेरे लिए अच्छा है, क्योंकि जो मुश्किल आज तुम्हें दरपेश है वही कल भी हो सकती है और अल्लाह ताला ने तमाम दिन एक जैसे बनाए हैं, इनमें कोई दिन खास नहीं। क्या जिसमें शहवत को तर्क करना आसान हो
ऐसे शख्स की मिसाल यूं समझिए कि जब उसे कहा जाए कि फला दरख्त को जड़ों से उखेड़ दो तो वो कहे कि ये दरख्त बहुत मजबूत है और मैं बहुत कमजोर हूँ, अब तो इसे उखेड़ना मेरे बस की बात नहीं, अलबत्ता आइंदा साल मैं इसे उखेड़ दूंगा। जरा इस अहमक से पूछिए कि क्या अगले साल वो दरख्त और मजबूत नहीं हो चुका होगा और तेरी कमजोरी मजीद बढ़ न चुकी होगी। बस यही सूरत हाल ख्वाहिशात के दरख्त की है जो रोज बरोज मजबूत से मजबूत तर हो जाता है, इसलिए कि वो तो ख्वाहिशात और लज्जात का महकूम बन चुका है, जिसकी वजह से वो ख्वाहिशात के अहकाम पर तसलसल से अमल पैरा है और इसका नतीजा ये होता है कि उन ख्वाहिशात की गुलामी की बंदिश की वजह से उनके खिलाफ चलना उसके बस का रोग नहीं रहता। लिहाजा ए इंसान, जितनी जल्दी तो ख्वाहिशात और शहवात के दरख्त को उखेड़ सकता है उसे उखेड़ दे, क्योंकि इसमें तेरा ही फायदा है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा, तफसीर समाअत कीजिए, अपने अजीज अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके जरिए सदका जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।